السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے بولنے کی اور سننے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو، پچھلے بار میں آپ سے عرض کیا ہے کہ طائف کے والے آ کر ایمان لانا، ایمان قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں آپ کو بتایا ہے بہت سارے لوگ قافلے کے ساتھ، بہت سارے قافلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیکو کو بول، میں آپ کو بولا، اس کو وفد بولتے بھی بولا، وہ سال کو وفد کا سال بول کے نام دیے بول کے بھی بولا تھا میں۔ اب یہ وفد میں کون کون آئے کہنے کا ذرے بارے میں دیکھیں گے، سب کے نہیں، ذرے بارے میں دیکھیں گے کون کون آئے، کیا ہوا۔ اب وقت میں ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ 20 40 50 آدمی قافلے کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ 9 ہجری میں ہوا تھا نا، اب وقت میں ایک آدمی بھی ہو سکتا اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ پورے لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا بات چیت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جوابات دیے اور کیا چلا، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک وفد میں سے ایک آدمی دمم ابن طلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سعد، انہوں ابھی اسلام قبول کرے نہیں، آپ کو نبی سے پوچھتے کیا کو اللہ تم نہ بولے کیا، اللہ کی عبادت کرنا، ابھی کس کی بھی عبادت کرے جانی کو بول کو اللہ تمہاری سی بولے کیا، تم نہ بولے کیا کو بول کو پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہاں اللہ میرے سے بولے ایسا۔ دوسری بات، کیا اللہ تم نہ نبی بنا کو بھیجا کیا، تم نہ اللہ چ نبی بنا کو بھیجا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں بولتے ہاں اللہ چ مجھے نبی بنا کو بھیجا، پیغمبر بنا کو بھیجا۔ اور تیسرا، اب ہم نہ سب کو 5 وقت کی نماز فرض کو بول کو اللہ چ کیا بولے سو کو بول کو پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہاں اللہ چ بولے کو بول کو بولتے۔ اب اس کے بعد انہوں بولتے اب اللہ تم نہ بولے کیا زکات دینا فرض کو بول کو، زکات دینا کو بول کو اللہ بولے کیا تم نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہاں اللہ چ بولے مجھے پورے کو بولتے۔ اب اس کے بعد جب انہوں یہ سننے کے بعد انہوں بولتے اچھا میں اب اسلام قبول کرتا ہوں اور میں جا کو میرے والے کے لوگوں کنے جا کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اب تمہیں کیا ہے تو بولے کہ سیم وہ جا کو میں وہ لگا کو بولتا ہوں، اس میں کیا بھی کمی کرتا نہیں، میں اس میں زیادہ کیا بھی بولتا نہیں میرے طرف سے میں، اب تمہیں کیا کیا ہے تو بولے کہ وہ میں جا کو ایسا بولتا ہوں بولتے ہوں لوگ۔ اب انہیں چلے جاتے اسلام قبول کر کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اگر یہ آدمی سچا آدمی ہو تو اب میں بولے اس میں کیا بھی کم کرے نہیں سرکار، نہیں اس میں اپنی طرف سے کیا بھی زیادہ بولے نہیں سرکار ہوا تو یہ آدمی جنتی کو بول کے بولے، انہیں جنت میں چلے جاتے کو بول کے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ انہوں کی جنت دیتا وہ بول کے بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ایک وفد ہو گیا۔ دوسرا وفد دیکھیں گے، دیکھو دوسرا وفد میں نصارہ، نجران کے نصارہ، نجران کرنے کا ایک علاقہ ایک پلیس کا نام ہے نصرہ۔ نصرہ کون ہے؟ عیسائیہ، کرسچینس، عیسائیہ، نصران، وہ لگا آتے۔ اب وہ لگا آئے تو
क्या होता वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लगा के वास्ते मस्जिद के अंदर टेंट डालते, टेंट डाल के वो लगा के वास्ते इंतजाम कराते, वो लगा रहना को बोल के अंदर है। अब ये लगा आते जी, अब एक वक्त में बोला ना बहुत सारे जनों भी आ सकते को, अब मस्जिद के अंदर वो लगा के वास्ते इंतजाम हुआ रहने के वास्ते। अब वो लगा पूरे अंदर आ जाते रहते, एक एक अंदर आ जाओगे, अंदर भीड़ते रहते। अबे बहुत सारे जनों आगे कर लो, मस्जिद भी भर गई कर लो, कमते वाले पैसा रह जाते। अब मस्जिद भर जाती हो तो कौन है तो किसी को तो जगह नहीं मिला कि ज्यादा हो जाओ को, वो लगा बाहर को चले जाते, बाहर को चले जाओ, कमते वाले अंदर बैठते। अबे बैठे सुनो भी, ईसाइया होकर भी मस्जिद में बैठे को बोल को उसका एहतराम करना, उसका इज्जत करना को बोल को पाक साफ होने रहते, वो लगा ईसाइया। अबे अंदर मस्जिद के अंदर क्या होता है कहने का ये लगा कुछ सुना ना कौन बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर बिठाए सो टेंट डाल को। अब ये लगा सुनते रहते कुरान की तिलावतें और नबी के बात, अल्लाह के बात, पूरे लगा सुनते रहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लगा से पूछते क्या को तुम्हें कब इस्लाम कबूल करते, तुम्हें ईमान कब लाते, तुम्हें इस्लाम कब कबूल करते, तुम्हें को बोल पूछते। जब वो लगा बोलते कि हमें तुम्हारे से पहले इस्लाम कबूल करे, तुम्हारे से पहले हमें ईमान लाए को बोल को बोलते, वो लगा हमें ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर लाए, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हमें ईमान लाए को बोल के बोलते। जब अब वैसा बोलते हैं वो लगा और बोलते कि हम ना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारे से ज्यादा मालूम को बोल के बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि तुम ना ज्यादा मालूम, तुम ना क्या भी मालूम नहीं, तुम्हारे से ज्यादा मुझे मालूम को बोल के बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे से ज्यादा मुझे मालूम, तुम ना इस्लाम कबूल करने के वास्ते रुकावट तीन वजह के वजह से तीन वजह के वजह से तुम्हें रुकते हैं। वो तीन क्या होता था बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट प्लस गुरु रहता नहीं लगा का, प्लस गुरु रहता ना, वो उसे पूजा करते तुम्हें लगा, लेकिन आप वहां ईसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं, तुम ना ये प्लस गुरु की पूजा करोगे बोल दो, ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हें क्या भी बोले नहीं, तुम्हें करते हो वो तो बोल के बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा तुम्हें सुअर का गोश्त खाते, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बोले वो हराम नहीं खाना, ये सुअर का गोश्त को बोल के ईसा अलैहिस्सलाम बोले, लेकिन तुम्हें खाते हैं। तीसरी बात ईसा अलैहिस्सलाम को तुम्हें अल्लाह का बेटा को बोल के बोलते, लेकिन खुद ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में बच्चा जब बीच पैदा हुए से बच्चा जबान से बोल डालते रहता, जब पैदा हुए से बच्चा जबान से बात करना होता नहीं, लेकिन मौजिजा हुआ मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जिना का दाग लगता है को बोल को अल्लाह मौजिजा देता। ईसा अलैहिस्सलाम मां के गोद में बात करने लग जाते, जब क्या बोले मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह मुझे नबी बनाता, मुझे पैगंबर बनाता, मुझे किताब देता है कि वो किताब दे को भेजता, और मैं नमाज लेको आता मुझे, तुम्हें कबूल करो। मेरी माँ जिनाखोरनी, मेरी माँ बहुत पाकीज़ा वाली को बोल को बयान करे, लेकिन तुम्हें लगा क्या करते हो गुनाह को, अल्लाह के बेटा को बोल को बोलते हैं जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को तुम्हें, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं, खुद बोले मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह मुझे नबी बनाया और नबी बनाता, मुझे किताब देता और मुझे 5 वक्त की नमाज दिया 5 वक्त की नमाज दिया मुझे को बोल को बोले, लेकिन तुम्हें लगा उसमें बदला डाल को अल्लाह का बेटा बना डाले, तुम्हें लगा ये तुम्हारी गलतियां को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। ये लगा क्या हो मानते नहीं, ये लगा झगड़ते नहीं, तुम्हें बोलते हो सब भी गलती ये हो बोल को लगा झगड़ने लगते, सुनते नहीं बात है। जब क्या होता वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लगा को अबे को लगा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते हुए तो समझते क्या कि को बोल को जरा कोशिश करते क्या कि को बोल को समझे, लेकिन अब वह देखे तो वो लगा नहीं सुनते हैं, बात सुनना नहीं हमें करते, तुम्हें झूठे ये वो बोल बोलते। जब नबी बोलते कि मुबाहला करेंगे चलो वो बोलते, मुबाहला कहे तो क्या हो कहते हो अबे 2 को 2 मिलाए तो क्या था 4 करने का सबको मालूम साफ है, इसमें किसका भी डाउट नहीं है ना, 2 को 2 4 करने का। अब वैसा चाहिए, अब कोसा तो बात वाजे हो गया तो 2 का 2 4 कहे ना दे, अब एक बात वाजे हो गया तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतना अरसा हो गया इस्लाम लेकर को दुनिया में, अब कितने जन को इस्लाम कबूल करते हैं,
मुसलमान बनते हैं। अब अल्लाह पूरे मौजी से क्या क्या है तो बतलाना कि इस्लाम बरहक को बोल को, इस्लाम सच्चा मजहब को बोल को, हर एक भी अल्लाह बता डाला, पूरे हो गए, नबी को पर बता डाला, कुरान बताया, हर एक उसमें अल्लाह बता डाला पूरे के पूरे। अब क्या हो गए तो आखिरी मौका वो लगा को मालूम मुबाहला का तो क्या हो गया तो अब तुम ना मालूम वो बात सच्ची देखो, लेकिन तुम्हें जरूरी के वजह से उसके वजह से तुम्हें इस्लाम कबूल करना नहीं, तुम्हें मालूम वो गलती को बोल दो, फिर भी तुम्हें नहीं को बोल करते हैं। वैसा के टाइम को मुबाहला को करते, ये कई को करते कब तो दोनों कौन कौन है जी वो लगा आपस में बात कर ले को, कौन है तो झूठा की उसके ऊपर अल्लाह की लानत होती, अल्लाह का अजाब आ जाता फौरन उसके ऊपर, कौन है तो झूठा के उसके ऊपर ये करेंगे आओ को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना बोलते हैं तो बोला मानना नहीं, अब ये मुबाहला करेंगे को बोल को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान की आयत देखता हूं, सूरह आली इमरान 60 में आयत में अल्लाह ताला फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के बाद, ये इल्म आ जाने के बाद अब कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहो आओ हम और तुम खुद भी आ जाए और अपने अपने बाल बच्चों भी ले आए और खुदा से दुआ करे कि जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत हो। अब कौन है तो झूठा की उसके ऊपर अल्लाह की लानत होना को बोलकर हमें दुआ करेंगे, तुम्हें भी आओ मैं भी आता हूँ, तुम्हारे बीविया को तुम्हारे औरता को बुला लेता हूँ मैं भी मेरा औरता को बुला लेकर आता हूँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चा को बुला लेता हूँ मैं भी मेरे बच्चा को बुला लेकर आता हूँ बोलोगे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये वही उतारा, कुरान की आयत उतारा है। अब क्या, अब वो तैयार हो जाते हैं, बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से तैयार हो जाते, अपने घर वालों से बोलते चलो हम एक जाएंगे, हमें जाकर मुबाहला करेंगे, ये लगा झूठे को बोल को मालूम हो जाना, ये लगा कि ऊपर अजाब आ जाना, कितना बोलते हैं तो ये लगा समझना नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये लगा कितना बड़ा गुनाह करते हैं, ये लगा नहीं हमें चलेंगे वो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। अच्छा वो बोले यहां से निकलते और फिर निकलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक आयत पढ़ को सुनाते, वो लगा पूरे को सूरह आली इमरान 59 में आयत पढ़ को सुनाते वो लगा को, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म किया कि हो जा तो वो हो गया। अब अल्लाह क्या बोल रहा है या आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या को अल्लाह का इरादा क्या हो बोल को अल्लाह बोलता है क्या को आदम अलैहिस्सलाम को तो माँ भी नहीं है ना, बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला मिट्टी से बना को उसमें जान डाल को हो जाएगा कहते हो गया, कुन फयकुन, कुन हो जा बोला तो फयकुन वो हो गया, आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए, इंसान बन गए, वो लोग खाली हो जा बोले तो हो गए, मिट्टी से बनाए तो। अब अल्लाह वो बोलता है कैसा है तो आदम को मैं बनाएंगी, ईसा का भी वक्त अच्छे मैं बनाए सो, दोनों का एक ही मिंजे क्या भी नहीं इसमें वो बोलकर अल्लाह ये आयत बोला, वो आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लगा को पूरे को सुनाए, जब ये लगा डर जाते कब है तो ये आयत आती कि आदम को कैसा है तो मैं पैदा करूंगी वैसा चे ईसा को भी मैं पैदा करूंगा बोल को बोलती कि जब वो लगा डर जाते ईसाइया डर जा को, अब वो लगा में वो लगा बातें कर लेने लगते, इन्हों सच्चे नबी हम ना मालूम, सच्चे नबी को बोल को इस्लाम बरहक को बोल को मालूम, लेकिन फिर भी हमें लगा से झगड़ते हैं, ये अब मुबाहला को बोल को हुआ गए तो अल्लाह के अजाब हमारे ऊपर आको हमें खत्म हो जाते, नको हमें ऐसी चल गिंगे वो बोल को आपस में बातें कर लेते रहते, बाद में इनकार कर डालते, मुबाहला नको वो बोल को इनकार कर डाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते हमें तुम ना टैक्स देते, यत्ता को बोल के हमें तुम ना टैक्स देते, तुम्हें हमारी हिफाजत करो, अब छोड़ डाले मुबाहला नको बोल के इनकार कर डालते, बोला था तुम्हारा तरफ से ईमानदार आदमी सच्चा आदमी ईमानदार आदमी कौन तो है तो ये उना की एक जना को हमारे साथ भेजो, हमें टैक्स देते को बोल के बोलते बोला था ईसाइया। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनने के बाद अच्छा को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ए अबू उबैदा उठो, उठकर तुम इनके साथ चले जाओगे बोल के बोलते अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हों उम्मत में बहुत ईमानदार और सच्चे आदमी इन्हों, उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सोच को अबू उबैदा को बोलते ए अबू उबैदा उठो और इनके साथ चले जाओ तुम को बोल को अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी जाते, दो वक्त हो गया, अब तीसरा वक्त में एक आदमी आते, अब जब से बोलो ना तमीम अद्दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हों आते, इन्हों भी ईसाई पहले फिर बाद में इन्हों इस्लाम कबूल करते, इन्हों का इलाका अल कुद्स
ये कुद्स कहने का जगह कहाँ है कहते तो इलाका फलस्तीन में है। ये फलस्तीन के वाले इनो कुद्स के जगह में रहते सुनो, इलाके में रहते सुनो, इनो फलस्तीन वाले इनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। अब मस्जिद नबवी में लाइटा क्या भी नहीं है, असल लाइटा कहने का क्या भी नहीं है मस्जिद नबवी में। चिरागा है नहीं, इससे पहले चिरागा किरोसिन के चिरागा, वो चिरागा कुछ उसके जगह में इलाके में बरतते से लगा। इन्हें यहां से ये लेकर जाते, ये लेकर जाओ पहले आदमी मस्जिद नबी में, मस्जिद में रोशनी लाए से पहला आदमी नो तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं तो जब तक का क्या भी नहीं है, असल लाइटा नहीं है, क्या भी नहीं है रोशनी, इनो वो लेको जाको मस्जिद नबी में ये रखो को बोल को रखते हो। उसके वजह से मस्जिद नबी में रोशनी आ जाती। अब नाइट में लाइटा नहीं है, फिर कैसा रोशनी इनो ये ले जाते ना, वो देते हो। पहली आदमी जी अबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहले आदमी मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर रोशनी लेकर ऐसे पहले आदमी नो तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी बड़ी फजीलत है, इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे हदीसें सुनाए, इन्हों कैसा क्या करने का। अब ये हो गया, ये 3 वक्त हो गया। कंदह के लोग अभी, कंदह को बोलकर एक जगह रहता, वहां के वाले लोग अभी इस्लाम कबूल कर डालते। वहां को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाते, वहां जाको इस्लाम के बारे में बोलने लगते। जब बोलने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में रेशम का कपड़ा, रेशम सिल्क का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा एक हाथ में लेको, दूसरे हाथ में सुन्ना, गोल्ड सुन्ना, वो सोना ले लेते। एक हाथ में सिल्क का कपड़ा है, एक हाथ में सुन्ना ले ले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बता को, 2 हाथ में ऐसा बता को, ये मेरी उम्मत के मर्दों के ऊपर हराम को बोल को बोलते। औरता पहन सकते, औरता इससे सिल्क का कपड़ा पहन सकते और सुन्ना पहन सकते, लेकिन मर्द बाने, मेरी उम्मत के मर्द बाने के ऊपर सिल्क कपड़ा भी पहन सकते नहीं। वो लगा रेशम सिल्क का कपड़ा पहनना जायज नहीं, हराम मेरी उम्मत के ऊपर है। दूसरी चीज है सुन्ना, सुन्ना पहनना भी मर्दबाने को, मेरी उम्मत के मर्दबाने के ऊपर हराम को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते। अब वह कंधा वाले लोग कर्चीफ के नाद रहता कपड़ा, वो कपड़ा सिल्क का कपड़ा, या कर्चीफ के नाद ये गर्दन है ना, या गर्दन पे ऐसे गोल लपट लेकर रहते। वो लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते ये क्या होगा बोल को, संगत से ये लगा ये निकाल डालते, ये निकाल डाल कर नीचे फेंक डालते। वो लगा का ईमान देखो, जब भी बोले सो वो लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोले सो ऐसा, ये 2 भी हराम है मेरी उम्मत के मर्दों के ऊपर को बोल के बोले, वो सिल्क का कपड़ा निकाल को फेंक डाले। वो जगह में अगर हमें होते तो ये कहीं को हराम है, ये कहीं को पहने जानी हमें, इसमें क्या है, सुनना मर्द बाना नहीं पहने तो अभी कौन पहनते, औरता पहनते क्या, हाँ सिल्क का कपड़ा पहने तो क्या हो जाता हमें, ये वो बोलकर हमें झगड़ने लगते। लेकिन वहां के सहाबा देखो, वो लगा का ईमान देखो, असल जर्रा बराबर भी क्या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करे नहीं, संग से निकाल को फेंक डाले वाला का। लेकिन आज हमारा ईमान देखो, हक की बात, कुरान की बात बोलते हैं तो भी यहाँ के लोगों से डरना पड़ता, क्या होता की को बोल को, कुरान की आयत बोलते हैं तो। लेकिन वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात अल्लाह की तरफ से ऐसा आई, ऐसा ये 2 भी मेरी उम्मत के बारे में हराम कहेगा ना, संग से निकाल को फेंक डाले। उसका से हमें सहाबा नहीं ना, सहाबा के ईमान के नजदीक भी हमें जा सकते नहीं, उतने कमजोर लोग हैं, हमें उतने गुनहगार लोग हैं। हमारे से वो लगा कई गुना ज्यादा दर्जे में, बहुत ज्यादा दर्जे में है वो लगा हमारे से भी, हमें उनसे बहुत पीछे है। वो लगा का ईमान हमारे में बिल्कुल नहीं आ सकता, कितना बड़ा अल्लाह वाला भी हो, सहाबा जैसा ईमान दिल में नहीं आता। अब वैसे संगत से क्या तो हुक्म बोले तो हमें मान सकते फौरन, कौन भी मान सकता नहीं, लेकिन सहाबा वो लगा कर को बताए, अमल कर को, सिर्फ बोलना नहीं, कर को बताए, अमल कर को इस उम्मत को बताए। सहाबा के तो क्या हो कहने का वो लगा बताए। अबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा इब्राहिम, हजरत मरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, तो इन दोनों की से इब्राहिम होते बेटा। इन्हों 18 महीने रिवायत में आता है कि 18 महीने, या और एक रिवायत में आता है कि 19 महीने में इनका इंतकाल हो गया, वो बोल को आता है। अभी ना का देखेंगे, अभी ना क्या करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी बच्चा, इनो आखिरी बेटा, आखिरी औलाद इनो अब इब्राहिम है। इना का क्या हो गया तो दूध के वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे इलाके में एक औरत के पास भेजते रहते इनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां का मर्द क्या काम करता करते तो
आयरन का काम रहता नहीं, वो जैसे ऐसा फिराए तो धुआं आते रहता, आयरन का काम है, फिराते तो मशीन है, धुआं आती रहती नहीं। वो धुआं के वजह से क्या होता है, तो ये फसला है ना, फसला की बीमारी होती है बच्चे को, नन्हा बच्चा, महीना का बच्चा, फसला की बीमारी होती है उसकी वजह से। उसके वजह से वो बच्चा का आखिरी टाइम चलता रहता, उनका मौत का वक्त होता वो बच्चे का, इब्राहिम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल डालते ऐसा बच्चा आखिरी टाइम में है, जल्दी आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढते ढूंढते आ जाकर अपने बेटे को अपने हाथ में ले लेकर रोने लग जाते, बहुत रोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रोते उस टाइम पर सहाबा पूछते यार, उसमें से एक सहाबी पूछते यार रसूलल्लाह तुम्हें कई को रोते हैं, ऐसा टेम्पर रोज जाने को बोल को बोले ना, तुम्हें कई को रोते हैं असल को बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मैं कहा बोला ऐसा रोज जाने को बोल को, ऐसा तकलीफ में है को किसे है तो भी रोना टिकता नहीं। अबे अल्लाह रहम दिल वालों के दिल में रहमत डाल डाला, उसकी रहमत डाल डाला, उसकी रहमत है इसलिए कठिन दिन वाला है तो रोता नहीं, लेकिन रहम है सो दिल वाला है तो रो डालता। तो बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर मैं कई को मना करम करते हो, कैसा चीजा में मना करम, मैं मार लेना, पीट लेना, जोर जोर से चिल्ला को रोना, ऐसा के मना करूं मैं। मामूली होने तकलीफ से आता सौ को मैं कभी रोको नहीं, मैं बोलो नहीं तुम ना, ये जायज नहीं को बोल को मार लेना, अपने आप को चिल्ला लेना, पुकार लेना, ऐसा के कामा करे जाने को बोल को बोलो मैं तुम ना लगा को, तो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा को बोलते। अब वो लगा को क्लैरिफाई देने के बाद अपने बेटे को हाथ में ले ले को रोते रहते, ए मेरे बेटे तेरी जुदाई मैं संभाल सकता नहीं, तू गया तो, लेकिन नहीं, अल्लाह की तकदीर के ऊपर मैं राजी, अल्लाह मुझे क्या भी करो, अल्लाह क्या करे तो बेहतरीन करता मुझे, मैं अल्लाह की तकदीर के ऊपर राजी को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। ऐसा आपस में से देख लेते उनकी जान चली जाती है, वो बच्चे की, वो बच्चा इंतकाल हो जाता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बच्चे इंतकाल हो गए सिवाय फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये क्लियरली बाकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बच्चे इंतकाल हो गए। अब से इब्राहिम का भी तो इंतकाल हो गया कि जब से अभी कौन भी नहीं, खाली फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा छे अकेली है सो अभी। अब क्या हुआ करते तो इंतकाल हुए को इब्राहिम में ग्रहणम का देनी, तेलुगु में ग्रहणम, वो गिरहन होता, सूरज गिरहन होता। जब वाके वाले क्या को बोलते करते तो नबी का बेटा इंतकाल हो गया ना इब्राहिम में, उसके वजह से ये ग्रहणम हुआ, सूरज गिरहन हुआ, सो को बोल के बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ये चांद, सूरज, सितारे, ये पूरे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, ये किसी का मरने से, किसी का मौत से, या किसी का हयात से, किसी का जिंदा होने से, पैदा होने से, इसमें क्या भी तब्दीली नहीं होती, क्या भी इसमें तब्दीली नहीं होती, फर्क नहीं होता इसमें क्या भी। तुम्हें ऐसा बातें बोलना ना को, ये सब भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता। मेरा बेटा इंतकाल हुआ को बोल के क्या भी गिरहन हुआ नहीं, ग्रहणम हुआ नहीं, लेकिन गिरहन हुए तो टाइम को तुम्हें डर को अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत की तरफ मस्जिदों में आको अल्लाह की इबादत करो। कब तक करना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, उन्हें बोलते हैं कि जब तक वो मामूल हो जाता नहीं, जब तक तुम्हें अल्लाह की डर में अल्लाह की इबादत करते रहो मस्जिद में अंदर को बोल को बोले। ग्रहणम बोलते ना, वो कभी तो होता कि वो पूरा हुए तक के, इसे देखना बुरा क्या को बोल को पूछे नहीं, इसे देखना बुरा नहीं को बोले आप सुनो, इसे देखना बुरा क्या भी नहीं, लेकिन जब तुम्हें मालूम हो जाने के बाद गिरहन होता है को बोल को, वो मामूल हुए तक तुम्हें मस्जिदों में आको और कहे तो घर में इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना। डर को क्या होता कि अल्लाह की अजाब क्या तो आती क्या की को बोल को ऐसा करना को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिए। हम ना आज भी होते रहता ये पूरा, अब ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद 9वें हिजरी का आखिरी वक्त और 10वें हिजरी का शुरुआत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पूरे को हुक्म देते, कौन कौन है तो इस्लाम कबूल करे कि वहां के हर एक इलाके को तुम्हें चले जाको इस्लाम दीन के बारे में लगा को इस्लाम क्या कि सीखो जाओ वो बोल को हर एक को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा पूरे को बोलते जाओ को अब फलाना फलाना को फलाना जगह जाओ को बोलते। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को के दूसरे अबू मूसा अल-अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ये दो को यमन भेजते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यमन के इलाके को भेजते। अब ये लगा को बोलते कि दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि तुम ना वहां अहले किताब मिलते, अहले किताब पे तो कौन है, यहूदिया, ईसाइया, क्रिश्चियन सा, तुम ना अहले किताब दिख के वो लगा को भी तुम्हें दीन की दावत दियो, दीन की दावत दे तो वो लगा को बोलो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं को बोल को। अगर वो लगा इस्लाम कबूल करे तो उन लगा को बोलो,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है को बोल को बोलो। वो भी ओला का कबूल करने के बाद ओला का को बोलो अल्लाह 5 टाइम का नमाज फर्ज कर डाला को बोल को बोलो। वो भी ओला का कबूल कर जाने के बाद ओला का को बोलो रमजान के महीने में रमजान के रोजा फर्ज कर डाला को बोल को बोलो। अच्छा वो भी कबूल कर डालने के बाद बोलो जक़ात फर्ज करे अल्लाह ताला, जक़ात कंफर्म देना, जक़ात फर्ज हुआ तो जक़ात फर्ज है को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो को बोल को बोलते। ये 5 चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो को बोलते वो लगा को। अब ये बोलने के बाद वो लगा इस्लाम कबूल करे तो वो लगा खुशखबरी सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि तुम्हें लगा हर एक जनों सहाबा अलग अलग इलाके को जाते हैं ना, वहां तुम्हें ये कि तुम किसी भी डराना नको, खुशखबरी सुनो, डराना नको, एक एकदम तुम्हें हल्का पहले वो लगा इल्म सीखिन दो, उसके बाद बोलो। और एक बात बोले किसके ऊपर है तो जुल्म होता कि जुल्म हुआ सुने दुआ करे तो डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती वो, अल्लाह और उसके दरमियान क्या भी रुकावट है तारी उसकी दुआ जरूर कबूल होती। किसको ऊपर भी तुम्हें लगा जुल्म करना नको, जबरदस्ती मैंने इस्लाम कबूल करोगे बोल को बोलना नको, जबरदस्ती मैंने लगा ऊपर क्या भी करना नको तुम्हें तो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ये डराते ऐसा इसी डरोगे बोल को। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बोलते, वो बात बोलने के बाद हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोने लग जाते। वो बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ये मेरे सहाबा अब तुम जा रहे हो ना, तुम वापस आने के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, मैं नहीं रहूंगा, तुम वापस आने के बाद मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा, तुम मस्जिद नबी में मुझे देखने के लिए आओगे तो वहां पे मैं नहीं रहूंगा, मेरी जनाजा रहेगा। ये बात बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रिटर्न आते स्टेम भोगू, मैं नहीं रहता दुनिया से चले जाता हूं, मेरे जनाजा एक ही चाहता है बोल को बोलते। ये बात सुनने के बाद हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रोने लगते, बहुत रोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती बोल के। अब आगे जाके देखेंगे जब ये लगा वापस आ गए तो वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके, उनका जनाजा तैयार हो चुका है। ये लोग वापस आने के बाद जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बोले वैसे ही आपकी बात सही हो गई, सच हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जर्रा बराबर भी झूठ की गुंजाइश भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात बोले तो भी वो कंफर्म होती, या कैसा है तो बोले कि तुम रिटर्न आप इस टाइम मैं नहीं रहता हूँ, सेम वैसा हुआ हुआ। अब बाद में इसके बाद 10 हिजरी में अल्लाह कुरान की एक आयत उतारता, सूरह आली इमरान 90 पर 7 में आयत में अल्लाह बोलता क्या को वो बोलते गए तो उसका मफहूम यह है कि किसके पास है तो इस्तिताअत है कि हज कर सकता, कि उसके ऊपर हज फर्ज है, उन्हा को हज करना चाहिए को बोलते अल्लाह 10 हिजरी में। जब ये आयत आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा को सहाबिया को सबको जमा करके बोलते ऐसा बोले अल्लाह चलो हम हज करने चलेंगे, तो बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ये हमारे नबी का आखिरी हज, ये हमारे नबी का आखिरी हज। अच्छा वो बोल को पूरे 1 लाख आदमियां होते, औरता मर्दा दो भी सब भी मिला को 1 लाख आदमियां शुरू होते। अब इसमें जर्रे रिवायता में आता है कि जिलकायदा का 25वें तारीख को, जिलकायदा का 25वें तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ को वहां से मदीने से निकले को बोल को है जर्रे रिवायतों में। अब वहां से हज करने के वास्ते निकले ना, वहां 3 हज में हज 3 तरह के हैं। पहले या तमत्तु अब इसमें क्या होगा तो पहले इहराम बांधते, क्या वो उम्रा के नियत से उम्रा करने के बाद वो इहराम निकाल डालते, वो इहराम डाल को फिर दूसरा इहराम बांध को फिर हज की नियत से निकल को हज करते पूरा, ये पहली का। और दूसरा
इफराद, इफराद क्या होगा कहते तो खाली हज की नियत है, खाली हज करते। तीसरा किनान, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनान करे, किनान करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या कहते तो तुम्हें हज और उम्रा दो भी एक ही साथ एक ही नियत करते, एक ही चीज के ऊपर करते पूरा। जब तक का तुम्हारा पूरा उम्रा और हज दो भी नहीं होता, जब तक का एहराम खोलते नहीं तुम्हारा, इसे किनान बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनान लेते, दो भी हज और उम्रा दो भी एक साथ करने का लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किनान करते। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 4वें तारीख को जुल्हुलैफा के जगह में रहते। जुल्हुलैफा का जगह क्या करते तो अबे मक्का आते टेम्पो मदीने के तरफ से क्या या फलस्तीन के तरफ से क्या आते टेम्पो, वो इलाके का नहीं रहो, एहराम बांधने का इलाका वो जुल्हुलैफा क्या होगा कहते तो कहा है तो ये एहराम बांधते की हज या उम्रा की वो इलाका वो उसे जुल्हुलैफा बोलते। वहां को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ही जिलहिज्जा तक वहां पहुंच जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पहुंच को असर की 2 रकात नमाज पढ़ते, असर की 4 रकात ना फिर 2 रकात क्यों पढ़े रखते तो सफर में अल्लाह बोला ना, गुंजाइश दिया ना, इसलिए सफर में होने से 4 रकात का 2 रकात करको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में पढ़ते। अब पूरी रात वाच रहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज पूरी रात वाच रहते। अब उजाला हो को फजर पढ़ने को अच्छे तरीके से पानी नहा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होते। अब वो मक्के में दाखिल होने का मदीना काकी ऊपर रहता, अब ये मक्का नीचे रहता। अब ये देखो, अब यहाँ है मदीना, अब ये लगा आना गया तो ऊपर से नीचे का आना, मक्का यहाँ है, मदीना यहाँ है, मदीना यहाँ है। हमारे वाले पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लगा पूरे यहाँ है, मदीने में है। अब आना गया तो ऊपर से यही सा आना, मक्का कहने का आना गया तो ऊपर से यही सा आते लगा पूरे। अब ऊपर की तरफ से आते आप कभी तो अंदर दाखिल होते कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे तो हजरे अस्वद को बोसा लेते। किस देते? बोसा देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद को। सबसे पहले काम जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का बोसा रखते तो हजरे अस्वद को बोसा देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाद में क्या करते तो मकाम इब्राहिम है ना, वो हजरे अस्वद के दरमियान जगह में 2 रकात नमाज पढ़ते। अब वो 2 रकात नमाज में रिवायत में आता है, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बाद में ये नमाज हो जाने के बाद फिर को हजरे अस्वद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लेते। किस देते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जमजम का पानी लेको जमजम का पानी पी डालते। जमजम का पानी पी को सहाबा पूछते अब हमें सफा के तरफ जाना या मरवा के तरफ जाना, किधर जाना हमें, तो बोल को पूछते सहाबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अल्लाह कुरान में कैसा है तो बोला कि वैसा जाएंगे वैसा करेंगे, वो बोल को बोलते। अब कुरान में सूरह बकरा 150 पर 8 के आयत में अल्लाह क्या को शुरू कराया करते हैं तो अब सफा अल मरवा को बोल के शुरू कराया। पहले सफा अल मरवा, मरवा बाद में आया, सफा पहले आया होने से हमें पहले सफा कर एक जंगे को बोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। अब पूरे सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सफा के पास चले जाते। सफा बहुत ऊपर है, वो ऊपर के पास चले जाते। अब वहां ऊपर चले जाने के बाद किबले की तरफ अपना रूह कर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ फिर को दुआ करते। वो दुआ क्या होते तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और एक दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सतर वादहु व नसर अब्दहु व अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु। ये दुआ करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद मरवा की तरफ जाते। सफा हो गया, अब फिर को मरवा की तरफ आते। मरवा की तरफ आने के बाद भी सिर्फ ये दुआ मांगते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा इससे कम क्या भी नहीं। सेम अब क्या है तो दुआ पड़ेगी, वो दुआ पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दुआ करने के बाद अब मक्के में जरूर रोज होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के में जरूर रोज हको। अब क्या करते गए तो जर्रे रिवायतों में आता है कि जुमेरात के रोज मीना के पास जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीना की तरफ जाको वहां जोहर असर मगरिब ईशा और दूसरे रोज का फजर पढ़ते। पढ़को जुम्मे के दिन फजर पढ़को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजदलिफा करने को जाते। मुजदलिफा करने जाने के बाद कुरैशा क्या समझते गए तो मुजदलिफा करने रहते ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरा याद रहते क्या कि बोल के बोलते। लेकिन कुरान अल्लाह क्या बोलता है इस्लाम में क्या है, मुजदलिफा के जाने के बाद फौरन हमें वहां से अरफात की तरफ चले जाना। फौरन कभी तो वहां जाते कि संग से अरफात की तरफ चले जाना को बोल है। उसका से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते गए तो अरफात की तरफ जाते और अरफात के पास जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में आखिरी खुतबा देते, हमारे नबी का वो आखिरी खुतबा।
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। अब इंशाअल्लाह अगले जुम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा देखेंगे। आप सब लोग कोशिश करें अगले जुम्मा जल्दी आने की कोशिश करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी टेम्पो हमने क्या बोले कने का हमने मालूम होना होने सी अगले जुम्मा एक बार एक ही जुम्मा हम सबके वास्ते तुम्हें 1 बजे आने की कोशिश करो, 1 बजे आ जाओ, सब भी 1 बजे आए तो जब आखिरी खुतबा सुनेंगे हम पूरे आखिरी टाइम पर हमारे नबी हमने क्या बोले करने का जर्रा तो भी मालूम होना ना, पूरी जिंदगी बहुत बोलते रहे लेकिन आखिरी टाइम को क्या बोले करने का मालूम होना ना। वो खुतबा के बारे में इंशाअल्लाह अगले जुम्मा देखेंगे। तुम्हें पूरे लोग कोशिश करो अगले जुम्मा जरूर 1 बजे आ जाने की कोशिश करो, करेंगे ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात हमारे सामने है उसके ऊपर हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें गलतियां हो गई तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन गलतियों को माफ फरमाए।